इन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस यू स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, फिर चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, HUF हो या इवन कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, उन सब में वन फीचर यूज टू बी कॉमन, दैट इज इजी फॉर्मेशन। पर जैसे ही बात जॉइंट स्टॉक कंपनी की आती थी, वो इजी फॉर्मेशन वाला फीचर चेंज हो जाता था इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्मेशन को कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, दैट एक्चुअली यू विल अंडरस्टैंड इन टुडेज वन शॉर्ट सेशन। Hello everyone and welcome back to the commerce element. In today's session you will learn everything about formation of a company. Formation of company takes place in maximum 4 stages: promotion, incorporation, capital subscription and commencement. Now depends कि अगर आपको private company start करनी है then you have to undergo only 2 stages. But if you are planning to start a public company, then you are supposed to undergo all the 4 stages of formation of company. So come, let's try to understand all of them one by one, starting with the promotion stage. Promotion stage is carried out by promoters of the company. अब ये promoters कौन है? Promoters or the promoter is a person जिसके माइंड में आइडिया क्लिक होता है कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है. Because idea click हुआ, he will be carrying out all the formalities of formation of a company. So to start with formalities, he will do everything to make the promotion stage a successful stage. So promotion stage को fulfill करने के लिए he will have to carry out certain steps. The first step is identification of business opportunity. Now जो भी promoter होगा वो market research करेगा, मार्केट को स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा, एंड वो स्टडी के बेसिस पे द प्रमोटर विल फाइंड आउट सम प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द मार्केट. अब जब उसे प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई है, द सेकंड थिंग ही विल डू इज ही विल गो फॉर फीजिबिलिटी स्टडी. फीजिबिलिटी स्टडी मतलब मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी थी वो तो प्रॉफिटेबल लग रही है, बट एज अ प्रमोटर आपके लिए उस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे मूव ऑन करना पॉसिबल है, feasible है कि नहीं, that he will check in the second step, that is feasibility study. Under feasibility study he will go for 3 different types of feasibility test: technical feasibility, financial feasibility and economical feasibility. अब जो भी opportunity profitable sound कर रही थी, it may not be technically possible for you to go further with that opportunity. So under technical feasibility you will study जो भी opportunity है उसको fulfill करने के लिए जो भी raw material चाहिए, whether that material will be easily available or not, जो भी technology चाहिए वो easily available होगी कि नहीं, जो भी skilled या semi skilled laborers चाहिए whether those laborers will be easily available or not. अगर टेक्निकली ये सारे इनपुट्स आपको इजीली नहीं मिल रहे देन आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटी को आप ड्रॉप कर दोगे. And if all the technical inputs are easily available, you will go for financial feasibility test. Here you will make out जो भी opportunity आपने identify करी थी उसको practically market में लाने के लिए जो भी funds चाहिए होंगे, whether you will be able to collect that many funds from the market or not. अगर funds collect करना possible है, then finally he will go for economic feasibility. That is वो अपॉर्चुनिटी आपको कितना प्रॉफिट, आपको कितना रिटर्न्स मार्केट में से दिलवाएगी, दैट यू विल स्टडी अंडर इकोनॉमिक फीजिबिलिटी. तो जो भी 2-3 अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करी थी उनमें से जो भी आइडिया ये तीनों टेस्ट पास करता है, विद दैट आइडिया प्रमोटर डिसाइड्स टू मूव फर्दर. वंस फीजिबिलिटी टेस्ट में कोई एक आइडिया भी सक्सेसफुल साउंड करता है, then he will go for the third step of promotion, that is name approval. अब आप कंपनी बनाने जा रहे हो, so you will of course wish to have one good name for the company. आप जो भी नाम सोचते हो that name you have to get it approved from the registrar of the company. While you are deciding the name for your company and going to get it approved from the registrar, you have to take care of certain things. आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है वो नाम सिलेक्ट नहीं कर सकते. एग्जिस्टिंग कंपनी से सिमिलर, उससे मिलता जुलता नाम भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते.
आप जो नाम सिलेक्ट कर रहे हो उसमें कोऑपरेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपकी तो कंपनी है। आप जो भी नाम सिलेक्ट कर रहे हो, अगर आप प्लान कर रहे हो कि पब्लिक कंपनी है, देन द नेम शुड बी फॉलोड बाय द वर्ड्स कंपनी लिमिटेड। सपोज आपने XYZ नाम सिलेक्ट किया और आप पब्लिक कंपनी बनाने का प्लान कर रहे हो, देन द नेम विल बी XYZ कंपनी लिमिटेड। XYZ नाम सिलेक्ट किया और आप प्राइवेट कंपनी बनाने का प्लान कर रहे हो, then the name should be XYZ Private Limited. So by taking care of all these matters, आप आपकी कंपनी का नेम अप्रूव करवाने रजिस्ट्रार के पास जाओगे। When you will go for name approval, you will have 3 set of names in priority order, so that आपने जो नाम सिलेक्ट किया था वो अगर किसी और ने ले लिया है, then registrar will approve your second name, and like that third. So you will always go with 3 names in priority order. Once name of your company is approved by the registrar, then the fourth step the promoter will be carrying out is fixing up signatories to MOA, Memorandum of Association. Memorandum of Association किसी भी कंपनी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट फ्रेम में बात करेंगे। बट इन दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यू हैव टू फिक्स साइन कौन करेगा। जो भी इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करेगा, दोज सिग्नेटरीज विल बी नोन एज फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब आपको लगेगा कि डायरेक्टर्स बना रहे, साइन ही तो करनी है, चलो कर दे, ऐसे नहीं होता। If you are ready to be the first directors of the company, then you have to give the permission that company के मैं shares purchase करूँगा, जिसके बेसिस पे मैं एज डायरेक्टर अपने आप को क्वालिफाई करवाऊँ, एंड thus those shares are known as qualification shares. तो जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करने के लिए रेडी होगा, वो सिग्नेटरीज, वो फर्स्ट डायरेक्टर्स विल गिव यू द कंसेंट, विल गिव यू द परमिशन दैट हम फ्यूचर में क्वालिफिकेशन शेयर्स परचेज करने के लिए रेडी है। वो क्वालिफिकेशन शेयर्स का जो भी अमाउंट पे करना होगा, वी आर रेडी टू पे दैट अमाउंट ऑल्सो। सो यू हैव टू फिक्स द सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हु विल बी एक्टिंग एज योर फर्स्ट डायरेक्टर्स। वंस आपने मेमोरेंडम में साइन करने वाले सिग्नेटरीज, आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स को चूज कर लिया, then the fifth thing you will do as a promoter is appointment of professionals. Now आप तो promoter हो, आप तो businessman हो, you may not be knowing all the legal formalities, you may not be knowing companies act in detail, you may not be knowing all the financial matters in detail, and thus you will need some professionals to help you out with all these technicalities, and these professionals will be taking care of all the formalities in their respective field. And once आपने professionals को भी appoint कर लिया, then you will start preparing the necessary documents with the help of those appointed professionals. Necessary documents में the 2 most important documents are, of course, the first one memorandum of association, the second one articles of association, and if you are planning to go for a public company, then you will have to prepare prospectus also. फिलहाल इन 3 के नाम जान लो, ये तीनों को हम नेक्स्ट फ्रेम में डिस्कस करेंगे। सो एज अ प्रमोटर, इफ यू सक्सेसफुली फुलफिल दीज स्टेप्स, देन आप प्रमोशन स्टेज पार कर चुके हो, एंड प्रमोशन स्टेज पार करने के बाद यू विल गो विद द second stage of formation of a company, that is the incorporation stage. अब इस incorporation stage को fulfill करने के लिए you are supposed to carry out these 4 steps. As a part of first step, आपने जो भी यहाँ पे necessary documents बनाए थे, आप उन documents को file करोगे with the registrar of the company. So the first step will be filing necessary documents. Necessary documents like memorandum of association, articles of association, statement of authorized capital. Authorized capital मतलब वो capital जो आप पूरी लाइफ टाइम के ड्यूरिंग में शेयर्स को इश्यू करके कलेक्ट करोगे, तो वो authorized capital आपका कितना होगा, that right now you will decide, and उसके related one statement you will file as one of the important document. The next is list of directors.
जो भी आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स बनने के लिए रेडी है, जो भी आपके सिग्नेटरीज थे, वो सिग्नेटरीज का लिस्ट बनाओगे एंड द लिस्ट विल कंटेन देयर नेम्स, देयर एड्रेसेस, एज, ऑक्यूपेशन एंड ऑल सच डिटेल्स. वंस आपने लिस्ट बना लिया, देन यू विल गेट द रिटर्न कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स टू एक्ट एज डायरेक्टर्स. डायरेक्टर खाली ऑटोग्राफ करने के लिए नहीं होता. एज वी डिस्कस्ड, टू बी द डायरेक्टर यू आर सपोज टू बाय द क्वालिफिकेशन शेयर्स. आप क्वालिफिकेशन शेयर्स परचेज करोगे एंड आप उसके लिए रिटर्न में कंसेंट मतलब परमिशन दोगे. फाइन, आई एम रेडी टू एक्ट एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट इज नेम ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस. आप जिस भी स्टेट में आपकी कंपनी को रजिस्टर करवा रहे हो, वहाँ की रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस यू विल प्लेस एज वन ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट. And finally, the statutory declaration that formalities of incorporation are duly completed. Statutory declaration मतलब one compulsory declaration form sign करोगे that ये जो भी formalities थी to fulfill the incorporation stage of the company, वो सारी formalities as per your knowledge as a promoter आपने fulfill करी है, आपने complete करी है. एंड वो स्टेटमेंट भी आप इन नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल के साथ अटैच करोगे. वंस ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल रेडी हो गई, यू विल गो एंड यू विल सबमिट इट टू द रजिस्ट्रार एंड द रजिस्ट्रार विल आस्क यू टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस विच इज रजिस्ट्रेशन फीस. नाउ ये रजिस्ट्रेशन फीस अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग अमाउंट की होगी. The amount of registration fees will depend on the authorized capital. तो जो भी necessary amount of fees थी, वो fees भी pay हो गई. Then the registration will take place. That is, registrar ये सारे documents को scrutinize करेगा, अच्छे से check करेगा. If registrar is satisfied with all the documents, all these things, then वो आपकी कंपनी को register करेगा. उस दिन आपकी कंपनी का registration हो जाएगा. जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, he will issue you the certificate of incorporation. Now the certificate of incorporation is like the birth certificate of the company. हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में देखा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका क्रिएशन लॉ करता है, जिसको बर्थ लॉ देता है. एंड लाइक दिस, लॉ ने उसका क्रिएशन किया, लॉ ने कंपनी को बर्थ दिया. उसका प्रूफ इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो जिस भी डेट को ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू होगा, उसी डेट से द कंपनी विल कम इनटू एग्जिस्टेंस एज एन आर्टिफिशियल पर्सन इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड. एंड नाउ यू हैव डन ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ इनकॉर्पोरेशन बिकॉज आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया. अगर आप प्राइवेट कंपनी चालू करने वाले हो तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया. Now it is like जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, you can start the business. But अगर आप पब्लिक कंपनी फॉर्म करना चाहते हो, then you have to undergo 2 more stages as well. So if you are planning to go for public company, you will have to undergo the 3rd stage, that is capital subscription stage. Under capital subscription stage, you will have to carry out these many steps. The very first is SEBI approval. SEBI is Securities and Exchange Board of India. It is that authority, it is that institute जो पूरे इंडिया में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है. बिकॉज एज अ पब्लिक कंपनी आप जनरल पब्लिक से फंड्स कलेक्ट करोगे बाय इशूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज. आपको सबसे पहले वो सिक्योरिटीज की मार्केट को जो कंट्रोल करता है, वो अथॉरिटी सेबी का अप्रूवल लेना होगा. वंस सेबी आपको अप्रूवल दे देती है कि फाइन यू कैन कलेक्ट दी फंड्स, देन ओनली यू कैन प्रोसीड फर्दर फॉर दिस रिमेनिंग स्टेप्स. नाउ वंस जब आपको सेबी का अप्रूवल मिल गया, देन द सेकंड स्टेप यू विल गो विद इज इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. नाउ ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट इन्विटेशन फ्रॉम द कंपनी टू द जनरल पब्लिक. कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि हमने शेयर्स इश्यू किए, आप हमारे शेयर्स में आके इन्वेस्ट करो.
So that document is known as prospectus. Now many times the company may not invite the entire general public to invest in its shares. कंपनी अपने शेयर्स कुछ प्राइवेट क्लाइंट्स को ही दे देती है, लाइक मे बी द फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या मे बी द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. इन सच केस जब आपको पूरी जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करना टू इन्वेस्ट इन योर शेयर्स, देन यू हैव टू इश्यू अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस. अब आपने जनरल पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस के थ्रू इनवाइट कर लिया, अब वो शेयर्स की एप्लीकेशन आपको करने लगेगी. Now the third thing you need to do is appointment of bankers, brokers and underwriters. Now when the general public will apply for your shares, वो एप्लीकेशन के साथ आपको शेयर्स की एप्लीकेशन के पैसे भेजेंगे. पैसे कैश के फॉर्म में या एनवलप में डाल के नहीं भेजेंगे. पैसे आप जो भी बैंकर को अपॉइंट किया होगा उस बैंक में दे विल सबमिट दी मनी, एंड thus you will have to appoint the bankers. You will have to also appoint the brokers जो आपके और जनरल पब्लिक के बीच में मिडलमैन का काम करेंगे, जो आपके शेयर्स जनरल पब्लिक तक पहुंचाएंगे. एंड यू विल ऑल्सो हैव टू अपॉइंट दी अंडरराइटर्स. नाउ ये अंडरराइटर्स आपको अंडरराइटिंग देंगे, आपको गारंटी देंगे दैट अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितनी शेयर्स की एप्लीकेशन नहीं आई तो बाकी के शेयर्स हम परचेज कर लेंगे. अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज आपने जितने भी शेयर्स इश्यू किए उन शेयर्स के 90% की कम से कम आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए. अगर 90% जितनी एप्लीकेशन नहीं आई तो जितने भी एप्लीकेशन के पैसे आए हैं दैट यू आर सपोज टू रिफंड टू दी जनरल पब्लिक. तो घराई लक्ष्मी को रिफंड ना करना पड़े, वापस ना भेजना पड़े. सो फॉर अ सेफर साइड द कंपनी विल अपॉइंट द अंडरराइटर्स ऑल्सो, जो बोलेंगे कि अगर सपोज आपने 100 शेयर्स इश्यू किए एंड 100 के 90% जितनी एप्लीकेशन, दैट इज कम से कम 90 शेयर्स की एप्लीकेशन आनी चाहिए. अगर नहीं आई तो घराई लक्ष्मी को वापस करना पड़ेगा. तो अंडरराइटर्स आपको गारंटी देंगे कि अगर 90 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं आई, सपोज 80 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, तो 10 शेयर्स आपका अंडरराइटर परचेज कर लेगा, आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन फुलफिल करवाएगा ही करवाएगा. फॉर दैट यू नीड टू अपॉइंट द अंडरराइटर. वंस अंडरराइटर अपॉइंट कर लिया, यू हैव टू टेक केयर ऑफ प्रोविजन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन which is 90% of issued capital. Once minimum subscription का provision भी fulfill हो गया, then next you have to apply to the stock exchange. Stock exchange is the market जिसके through आप आपकी securities general public को available करवाओगे. And thus out of all the stock exchange of India, you need to register with any one of the stock exchange. And thus जिस भी stock exchange में आपको register होना है उस स्टॉक एक्सचेंज को आप एप्लीकेशन सेंड करोगे. एंड वंस स्टॉक एक्सचेंज ने भी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर ली, देन फाइनली यू विल स्टार्ट अलॉटिंग द शेयर्स. शेयर्स अलॉट करना मतलब अब तक तो आपका प्रोस्पेक्टस देख के लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है. नाउ यू विल स्टार्ट अलॉटिंग देम द शेयर्स. आप उनको शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करना, अलॉट करना स्टार्ट कर दोगे. एंड दस लाइक दिस बाय कैरिंग आउट these 6 steps आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन थर्ड स्टेज भी फुलफिल हो जाएगा. वंस यू हैव फुलफिल्ड ऑल दी फॉर्मेलिटीज ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, you will finally go with the commencement of business, that is the 4th stage. To fulfill the requirement of this step, you have to sign 4 declarations. आपको 4 declarations रजिस्ट्रार को सबमिट करने होंगे. The first declaration is that the shares payable in cash have been subscribed and minimum subscription received. जो भी शेयर्स कैश में आपने इश्यू किए थे वो लोगों ने सब्सक्राइब करवाए, उनके लिए लोगों ने एप्लीकेशंस करी एंड आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली दैट इज ये 90% वाली कंडीशन भी फुलफिल करी. एक ऐसा डिक्लेरेशन. देन सेकंड डिक्लेरेशन दैट ऑल डायरेक्टर्स हैव पेड इन कैश the application and allotment money. यहाँ पे हमने बोला था we will fix the signatories to memorandum of association.
जो भी सिग्नेटरीज होंगे, जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करेंगे, दे विल बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ योर कंपनी, एंड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी दे विल हैव टू बाय क्वालिफिकेशन शेयर्स। अब जो भी क्वालिफिकेशन शेयर्स उन लोगों ने बाई किए हैं, उन शेयर्स का उन लोगों ने कैश में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के टाइम पे आपने जितना जनरल पब्लिक से पैसा कलेक्ट किया है, उतना ही पैसा, उतना ही कैश आपके डायरेक्टर्स ने भी आपको दिया है, एक ऐसा डिक्लेरेशन। देन द डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू बी रिफंडेड टू एनी एप्लीकेंट। Now sometimes it may so happen that आपने 100 शेयर्स इश्यू किए, बट आपको एप्लीकेशंस आई 120 शेयर्स के लिए, तो 20 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई, मे बी वो एप्लीकेशंस आपको रिजेक्ट करनी पड़े। बिकॉज वो एप्लीकेशंस आपने रिजेक्ट करी, उन लोगों ने एप्लीकेशन के साथ जो पैसा भेजा था, वो पैसा आपने उन एप्लीकेंट्स को रिफंड कर दिया जिनको शेयर्स नहीं दिए, एक ऐसा डिक्लेरेशन। And finally, one last declaration that all the above formalities have been duly completed. ये तीनों formalities as far as your knowledge is concerned आपने fulfill कर ली। Last वो वाला declaration, ये 4 declarations again आप जाके Registrar of Companies को submit करोगे। He will go through all these details, and once he is satisfied with the details, he will issue you certificate of commencement of business. Once you get the certificate of commencement of business in your hand, as a public company, you can start functioning. You can commence your business activity. And like this, the companies will undergo these 4 stages of formation if it is a public company. And if it is a private company, it will just go through these 2 stages only. Now in the first stage we learned that the promoters will be preparing certain necessary documents. Those 3 necessary documents we will be studying in the next frame. Filal, if you wish to take the screenshot, you can take it. 4 stages of formation करते करते आप अब तक तो समझ ही गए होंगे कि कंपनी फॉर्मेशन को कॉम्प्लेक्स और लेंदी क्यों कहते हैं, बट पिक्चर अभी बाकी है। We are yet to go with 3 most important documents to be prepared while going for formation of company. The first and the most important document जो हर एक कंपनी, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, बनाना पड़ता है एंड फाइल करना पड़ता है, इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. Now memorandum of association is the principal document of any company, the main document of any company. It is known as charter of company. जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, सेम वे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का चार्टर है, किसी भी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है. इंडिया में वो सब कुछ वॉइड माना जाता है, इलीगल माना जाता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं. सेम वे जो भी इस चार्टर डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं, all those activities, all those acts are believed to be void, are believed to be illegal for any company, and thus this document is known as principal as well as the charter document of the company. Now this document is such a document जो कंपनी को आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है. अगर किसी भी आउटसाइड पार्टी को आपकी कंपनी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, then all those needed information they will get in your memorandum of association, and thus it is known as a document that connects the company with outside world. Because ये इतना important document है, it contains so many number of clauses. जैसे आपका बिजनेस स्टडीज का सिलेबस नंबर ऑफ चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है, सेम वे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नंबर ऑफ क्लॉजेस में डिवाइडेड होता है. The very first clause is name clause. This name clause will contain the complete name of your company. जब हमने name approval very first stage के एक step में करा था, that name approval करवाते time you have to take care of certain things. So वही सारी things को ध्यान में रख के name clause बनता है. Name clause में बोला है कि अगर आप private company open कर रहे हो,
then the company's name should be followed by the word private limited. अगर आप पब्लिक कंपनी ओपन कर रहे हो, then the name of the company should be followed by the word company limited. Your company should not contain any word like cooperative, otherwise तो वो cooperative society sound करेगी. आपकी कंपनी का नेम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी का नेम है, वो नहीं होना चाहिए, इवन उससे सिमिलर भी नहीं होना चाहिए. So by taking care of all these things, you will be preparing the name clause of the company. Then the next is situation or domicile clause, जिसमें आपकी registered office का address mentioned होगा. Then the next one is object clause, the most important clause of the most important document. Object clause में आपकी कंपनी किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनी, that must be mentioned. Object clause will be divided into two kind of objects या two kind of objectives, primary objective and secondary objective. Now इस clause में जो भी objective आपने mention नहीं किया, if in long future also अगर वो activity आप carry out करते हो, then that activity will be considered as void, will be considered as illegal activity. So this clause is the most important because इसके beyond जो भी कुछ करोगे वो सारी activities illegal मानी जाएगी. Then the next is liability clause. ये clause बताता है कि आपके सारे शेयर होल्डर्स की liability limited रहेगी. Limited कितनी? So limited up to the amount of unpaid share capital. Suppose आपने 10 रुपीज का एक शेयर इश्यू किया है and I have purchased 1000 shares of your company. आपने 10 में से अब तक 6 रुपीज पर शेयर ऑलरेडी मंगवा लिए. So being the holder of 1000 shares, 6 तो मैंने ऑलरेडी पे कर दिए. Now my liability will be limited up to 1000 shares into 4 rupees, which is my unpaid capital. 10 में से 6 पे कर दिया, 4 पे करना बाकी है. So 4 is my unpaid capital. So 1000 into 4, my liability will be limited max up to 4000 rupees, not 1 rupee more than that. फिर आपकी कंपनी को कितना भी लॉस जाए, my liability will remain limited. That will be mentioned in liability clause. Then the next is capital clause. This clause will contain the authorized capital of the company. That is, कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितना मैक्सिमम अमाउंट शेयर्स को इश्यू करके कलेक्ट कर सकती है, दैट अमाउंट विल बी मेंशन्ड इन कैपिटल क्लॉज. एंड दैट अमाउंट जो मैक्सिमम कलेक्ट कर सकती है, दैट इज नोन एज ऑथोराइज्ड कैपिटल. इट इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल एज वेल एज नॉमिनल कैपिटल ऑल्सो. एंड द लास्ट वन इज एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज. This clause will mention the name of those persons who are ready to get associated as directors of the company. जो भी आपकी कंपनी के साथ as director associate होने वाला है, उन लोगों को to be the director, to qualify as director, they'll have to buy the qualification shares. And those who are ready to buy qualification shares and those who are ready to pay cash for that will be associated as directors of the company, and those people's names will be mentioned in your association or the subscription clause. So this was the first most important document of any company, whether you are a public company, whether you are a private company. आपको आपका खुद का memorandum of association बनाना ही होगा. It is compulsory. Now moving on to the second most important document, Articles of Association. Now Articles of Association is that document which contains rules and regulations for internal management of the company. आपकी कंपनी का internal management, routine management, day to day administration कैसे carry out होगा, उसको carry करने के लिए जो भी rules and regulations बनाए हैं, those rules and regulations will be mentioned in your articles of association. जैसे हर एक कंपनी के लिए मेमोरेंडम बनाना कंपलसरी है, हर एक कंपनी के लिए आर्टिकल्स बनाना कंपलसरी नहीं है.
अगर आपको आपकी खुद की कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन नहीं करने, सपोज द प्रमोटर्स आर अ बिट लेजी, कौन आर्टिकल्स बनाए, कौन इतनी मगजमारी करे, नहीं बनाना, देन दैट इज फाइन। कंपनीज एक्ट 2013 में टेबल एफ दिया है। टेबल एफ कंटेन्स 99 सैंपल्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। 99 डिफरेंट सेट ऑफ आर्टिकल्स आर गिवन। उन 99 सेट ऑफ आर्टिकल्स में से आप कोई सा भी एक फेवरेबल आर्टिकल उठा लो एंड आपकी कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट उस सैंपल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के वे में कैरी आउट करो, देन दैट इज पॉसिबल. So that document which contains the samples of articles of association is named as table F. Now अगर आप articles of association बनाते हो या अगर आप table F की भी बात करते हो तो what are the contents? ऐसे क्या क्या contents होंगे जिसको आप आपके articles of association में mention करोगे. तो some of the important contents of articles of association are procedure for meetings. आप आपकी मीटिंग्स कब कब कैसे कैरी आउट करोगे उसका पूरा प्रोसीजर विल बी मेंशन्ड इन योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. राइट्स, ड्यूटीज एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स. आपके डायरेक्टर्स के क्या क्या राइट्स होंगे, उनकी क्या क्या ड्यूटीज होगी, उनको कितना रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा, दैट विल बी मेंशन्ड इन योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. देन प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स. आप अगर न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो तो क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे. अगर किसी डायरेक्टर को ऐसे हटा दे रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे, दैट मस्ट बी मेंशन्ड इन योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. देन द नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर शेयर अलॉटमेंट. आप जब आपकी कंपनी के शेयर्स अलॉट करोगे तो क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे, दैट मस्ट बी मेंशन्ड हियर. प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. जब भी कभी इन लॉन्ग फ्यूचर आपकी कंपनी वाइंड अप होगी, शट डाउन होगी, तो आप क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे, दैट मस्ट बी मेंशन्ड इन योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड इट मस्ट कंटेन द सील ऑफ द कंपनी. आपकी कंपनी का एक कॉमन सील होगा विच विल वर्क एज कंपनीज सिग्नेचर. तो वो कॉमन सील आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एनग्रेव्ड होना चाहिए. Now besides these there are so many other contents also, but मैंने specifically इन्हीं contents को लिया है because all other common contents are related to shares. और वो contents for the name sake आप याद रखो तो भले, but उनका actual meaning आपको next year 12th class के accounts में पता चलेगा. So उन components को यहाँ पे present नहीं किया, मैंने avoid किया है. When you are asked to write about articles and its contents, then इतने contents या one or two more लिख के then last में others लिख दो या etc लिख दो, तो that is fine. So I hope now the second most important document is also clear to you. Now many times in exams, difference between memorandum and articles of association is asked. So let's understand the difference between memorandum of association and articles of association. On the basis of nature, memorandum is known as charter of the company, whereas articles will be containing the bylaws of the company. Bylaws matlab the rules and regulations of the company. Then the next point of difference is scope. Your memorandum will define objects and power of the company. आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, आपकी कंपनी के पास क्या क्या पावर है, that will be defined in memorandum of association, whereas your articles will contain rules and regulations related to the internal management of the company. Then next is status. What is the status of memorandum? It is a fundamental document, whereas articles is a supplementary document. Then next is legal effect. Now acts beyond the scope of memorandum are considered void, and acts beyond the scope of articles can be ratified by the shareholders. शेयरहोल्डर्स की मीटिंग में अगर आप वोटिंग के बेसिस पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी चेंज करना चाहते हो, रेटिफाई करना चाहते हो, देन दैट इज पॉसिबल. बट एनी एक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम विल बी कंसीडर्ड एज वॉइड. The next is compulsion. As we already discussed,
फॉर एवरी कंपनी अपना खुद का मेमोरेंडम बनाना कंपलसरी है, बट फॉर एवरी कंपनी मेकिंग आर्टिकल्स इज नॉट कंपलसरी। अगर आप आपकी कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बना रहे हो, देन यू कैन अडैप्ट टेबल एफ which will be containing 99 samples of articles। उनमें से कोई सा भी आप चूज करके आपकी कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को अकॉर्डिंगली रन कर सकते हो। सो मेमोरेंडम बनाना हर किसी के लिए कंपलसरी है, वेयर एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना सबके लिए कंपलसरी नहीं है। द नेक्स्ट इज रिलेशन। इट इज दैट डॉक्यूमेंट विच रिलेट्स द कंपनी विथ आउटसाइड वर्ल्ड, and articles is such a document which relates the company with its own members। And the last point of difference is alteration। memorandum of association because आपकी कंपनी को पूरे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है, रिलेट करता है, उसमें कुछ भी अल्ट्रेशन करना, उसमें कुछ भी चेंजेस करना इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज वेरी लॉन्ग प्रोसीजर एज वेल। बट बिकॉज बेचारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तो आपकी इंटरनल मैनेजमेंट के रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो आपकी कंपनी को उसी के मेंबर्स के साथ रिलेट करता है। सो अगर आपको आपके आर्टिकल्स में अल्ट्रेशंस करने हैं, चेंजेस करने हैं, देन इट इज कंपैरेटिवली इजी आल्सो एंड इट इज अ सिंपल प्रोसीजर आल्सो। आई होप द डिफरेंस इज आल्सो क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द लास्ट important document, that is prospectus। Now any public company अपने shares, अपनी different securities issue करके जनरल पब्लिक से फंड्स कलेक्ट करेगी। अब जनरल पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि आपने शेयर इश्यू किए, आपने कोई सिक्योरिटी इश्यू की, उनको पता ही नहीं चलेगा, तो आपको फंड्स देंगे कैसे? एंड सो द पब्लिक कंपनी विल इश्यू प्रोस्पेक्टस to make the general public aware that I am so and so company, मैंने इतने शेयर्स इश्यू किए। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन बाइंग माई शेयर्स, कम बाई माई शेयर्स एंड इन्वेस्ट इन माई कंपनी। सो व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट इन कंपनीज सिक्योरिटी। कंपनी की किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी जनरल पब्लिक को ऑफिशियली इनवाइट करती है। कंपनी ऑफिशियली जिस डॉक्यूमेंट को इश्यू करके इनवाइट करती है, द डॉक्यूमेंट इज नोन एज प्रोस्पेक्टस। सो इट इज अ काइंड ऑफ इनविटेशन कार्ड ओनली, जो कंपनी जनरल पब्लिक को देती है कि आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। ना कंपनी ने जनरल पब्लिक को इनवाइट किया और जनरल पब्लिक चुपचाप अपने पैसे दे देगी, ऐसे तो नहीं करेगी, बिकॉज जनरल पब्लिक भी स्मार्ट है। Before giving the funds to company, the general public will wish to know कंपनी हमारे फंड्स कहाँ पे यूज करेगी, कंपनी अभी कितने शेयर्स इश्यू कर रही है, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी, जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी उसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, उसमें रिटर्न्स मिलने के कितने चांसेस है, एंड सो ऑन। एंड सो दिस लीगल डॉक्यूमेंट विल कंटेन एवरीथिंग, every detail that the general public needs to know before making investment in your company। and going through all these details, general public decide करेगी कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। Now moving on to the essential elements of prospectus। Prospectus must be invitation to public at large and not to any specific group। गुजरात वालों, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। महाराष्ट्र पीपल, आई एम इनवाइटिंग यू टू कम एंड इन्वेस्ट इन माय सिक्योरिटीज। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप होल लॉट ऑफ जनरल पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट करो एंड नॉट एनी स्पेसिफिक ग्रुप। देन दी सेकेंड एलिमेंट, इट मस्ट बी बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। Now invitation to invite in company's securities must be by the company itself या on behalf of company, and it should not be on behalf of directors या promoters। As a director, as a promoter of the company, आप पब्लिक को इनवाइट नहीं करोगे, कंपनी खुद पब्लिक को इनवाइट करेगी, या आप ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी इनवाइट करोगे टू द पब्लिक to come and invest in your company's securities।
And the last one, it must be to subscribe in company's security. क्यों इनविटेशन दे रहे हो आप कंपनी के बिहाफ पे जनरल पब्लिक को? टू सब्सक्राइब इन कंपनीज सिक्योरिटी. And that invitation is not at all for attending any party or any function or any product launch of the company. आप of course जनरल पब्लिक को इन सारे इवेंट्स में इनवाइट कर सकते हो, but then that invitation will not be prospectus. अगर आप prospectus issue कर रहे हो, then that invitation only and only must be inviting public to subscribe in your securities. I hope even prospectus is clear to you. So in this way, in this one short session, you learned everything about the formation of a company. Now you can confidently go and crack your exams. Until the next session, stay tuned and goodbye.